Morning, students. Good morning, students. Good morning, Vita. Good morning. Good morning. Good morning. Listen, class. Come to the. As you know, we are discussing about GST. So come to the question number 9, and today we'll discuss questions related to interstate transaction. So come to the question number 9. Question number 9. Correct. The printed price of an article is 40,000. MRP is given. MRP equal 40,000. It is given. MRP is given 40,000. A wholesaler in Uttar Pradesh buy the article from a manufacturer in Gujarat at a discount of 10% on the printed price. Manufacturer is from Gujarat. So first of all, here let us this one manufacturer, and then wholesaler. Two persons you can see in this business, manufacturer and wholesaler, and then wholesaler sell to the retailer. One person is also involved, that is retailer. Retailer. So here in this business there are three persons involved: wholesaler, manufacturer, and retailer. Manufacturer is from Gujarat. This one belongs to Gujarat. And wholesaler UP, and retailer from HP, Himachal Pradesh. You can see here कि all the persons involved in this business, one is from Gujarat, second one is from UP, and third one is from Himachal Pradesh. So definitely the transaction is interstate transaction. ठीक है? रिमझिम यादव, are you listening? Rimjim Yadav, are you listening? Yes. Tell me, if there is interstate transaction, then which type of tax is applied? CGST, SGST, or other? In interstate transaction, which type of GST is applied? IGST. Good. Shiv Srivastava has given IGST. Yes, everyone know IGST. Integrated Goods Services Tax जो directly goes to the central government. ठीक है? So since these are involved from different states, so the tax is IGST or CGST or SGST. Now the question is, देखो MRP is given 40,000
and wholesaler in Uttar Pradesh buy an article in Gujarat at a discount of 10%. Discount is given 10% for this one. Wholesaler sell it to at much at 5% above the retail price. At 5% on MRP. ठीक है? And GST is 18%. GST is 18%. So this is the question. क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लो. देखो, मैन्युफैक्चरर sells certain item to a wholesaler and wholesaler sells that item to a retailer. The MRP of that item is 40,000, and when manufacturer sells that item to the wholesaler, he gives 10% discount on this MRP. And wholesaler raised that price by 5% on MRP and then sell to the retailer. What the question is asking, we'll see later. First of all, come to the calculation part regarding this. देखो, पहले manufacturer is selling wholesaler at a 10% discount. So first of all, you find the discounted amount on 40,000. So what is the discounted amount? Discounted amount अगर आप निकालोगे तो 40,000 minus 40,000 of 10%. ठीक है ना? 40,000 of 10%. Yes, 36,000. Because double zero cancel out. So 40,000 minus 4,000 is equal to rupees 36,000. This is the selling price. समझना बेटा, एक एक स्टेप देखो. वैसे तो हम आपको क्वेश्चन दे चुके हैं, पर आपको स्टेप समझा रहे हैं, कंसेप्ट समझा रहे हैं, उस चीज को समझना. जैसे मैन्युफैक्चरर एमआरपी उस आइटम का 40,000 था और 40,000 में जब इसने होलसेलर को सेल किया है तो 10% डिस्काउंट एमआरपी पे दिया हुआ है. तो 10% डिस्काउंट ऑन एमआरपी इज 4,000. तो 40,000 minus 4,000 is 36,000. This is the first selling price SP1. क्योंकि पहले मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को सेल किया. एंड यू नो हु इज परचेजिंग? होलसेलर. Then wholesaler will pay tax. And here, since manufacturer belongs to Gujarat and wholesaler belongs to UP, so there is only IGST. GST will not divided into CGST and SGST. So directly you will calculate here IGST. IGST equal 36,000 multiply how much percent it is given? It is given 18%. So directly find 18%. So 18 double zero cancel out. 36 360 multiply 18. How much this one? ये 42,400 नहीं, पूरा ऐड करके बता रहे हो. 6,480. गुड. 6,480. 6,480. This one is the IGST. अब देखो बेटा, IGST डिस्काउंटेड. यस, तो IGST जो निकल के आएगा ये पहला टैक्स है और पहले टैक्स को आप बोलते हो इनपुट टैक्स. तो दिस इज यू मे से इनपुट. इसको इनपुट भी बोलते हैं. जो फर्स्ट टैक्स निकल के आता है वो इनपुट, उसको इनपुट भी बोलते हैं. तो आपके फर्स्ट
फर्स्ट पार्ट का जब सेलिंग प्राइस फाइंड कर लिया तो इसका टैक्स भी कैलकुलेट कर लिया है। नाउ कम टू द सेकंड सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द सेकंड सेलिंग प्राइस। अभी तो ये सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है। अब देखो, wholesaler is selling that item to a retailer by raising the price 5% on the MRP, and you know MRP is what, 40,000। तो 40,000 पे प्लस 5% बढ़ा करके उसने चार्ज किया हुआ है। तो पहले तो निकालोगे 5% ऑफ कितना, 40,000। तो जब 40,000 का निकालोगे 5/100 इंटू 40,000, यहाँ डबल जीरो कैंसिल आउट और यहाँ सिंगल डबल जीरो बचेंगे, 0 0 5 हो जा 20। हाउ मच, 2000। 2000 is a मतलब he raised the price by 2000, then SP2 is what, SP2 is what, 40,000 or plus 2000 equal to rupees 42,000। 42,000, this is the MRP, ठीक है, सॉरी सेलिंग प्राइस सेकंड 42,000 you may say, to 40,000 is the MRP and plus 2,000 raised amount, so total is 42,000। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? यस। No, no. In the question it is given कि wholesaler is selling that item by raising the price 5% on the MRP to the retailer। wholesaler जो है MRP पे 5% बढ़ा करके रिटेलर को सेल कर रहा है, ठीक है। तो MRP 40,000 5% बढ़ाएगा, तो जब 5% बढ़ा रहा है तो 2,000 तो उसका इंक्रीज अमाउंट होगा, यानी उसको 40,000 के बजाय 42,000 में बढ़ा के बेच रहा है, यानी एमआरपी उसका चेंज कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बेटा, इसको नोट कर लेना, क्योंकि अभी जब हम इसको रब करेंगे तो फिर आपसे पूछेंगे क्या क्या हमने लिखा था, क्योंकि रब कर देंगे तो मुझे याद नहीं रहेगा। आप अपनी कॉपी में इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पार्ट में वहां पे डायरेक्ट आंसर फाइंड करेंगे। रिटर्न, रिटर्न एवरीवन, ओके, Aditi Shukla has replied yes, so I am going to rub this one। देखो बेटा, पहले सेकंड जो सेलिंग प्राइस था, सेकंड सेलिंग प्राइस SP2 वाज 42,000, और हम आपको बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि आपका मेन पर्पस जो है सेलिंग प्राइस फाइंड करना। जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में सेलिंग प्राइस फाइंड किया है, फर्स्ट स्टेप में मैन्युफैक्चरर ने सेल किया है होलसेलर को, सेकंड स्टेप में होलसेलर जब रिटेलर को सेल किया है तो सेकंड सेलिंग प्राइस आएगा, दैट इज 42,000। Now you will just find the tax on this because retailer is purchasing this item. So here also IGST you will calculate, IGST 42,000 multiply 18%, क्योंकि this he is also belonging to the Himachal Pradesh, so 42 means 20 into 18 equal how much? Equal how much? 7,560। yes, 7,560। ये तो रहा बेटा प्रकार। ये देखो, जो सेकंड टैक्स आया है वो आउटपुट टैक्स हो जाएगा। आउटपुट आपको मिल गया 7,560, और इनपुट कितना मिला था, इनपुट कितना था, who will tell me what was the input tax, what was the input tax? 6,480। जो पहला टैक्स था वो इनपुट टैक्स था 6,480,
और जो दूसरा टैक्स निकल के आया IGST वो 7560 था। अब इसके बाद क्वेश्चन पार्ट पे आएंगे। पहला पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है? द फर्स्ट पार्ट इज, देखो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय होलसेलर फॉर द आर्टिकल। इसके लिए पूछ रहा है होलसेलर के लिए कि होलसेलर ने इंक्लूडिंग टैक्स, इंक्लूडिंग टैक्स को मिला करके होलसेलर ने टोटल अमाउंट कितना पे किया टैक्स को मिला करके। तो पहले तो देखो, जब मैन्युफैक्चर होलसेलर ने खरीदा था तो उसे 10% का डिस्काउंट मिला था तो 36,000 पड़ा था। तो 36,000 और प्लस इसने इतना टैक्स दिया 6,480। तो फर्स्ट पार्ट में 36,000 और प्लस 6,480, ये इसको अमाउंट पड़ जाएगा टोटल हाउ मच 42,480, 42,480। ये तो सेकंड फर्स्ट पार्ट के लिए हो गया। मतलब होलसेलर विल पे टू द मैन्युफैक्चरर 42,400 विद GST। टैक्स को मिला करके उसको 42,480 पे करना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा है कि द अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स पेड बाय द रिटेलर, इज इट अ टैक्स सर? हाँ बोलो क्या पूछ रहा है? एनीवन इज आस्किंग समथिंग वंस अगेन? नहीं बेटा, ये 42,480 टैक्स नहीं है। टैक्स तो केवल 6,480 था ना जो होलसेलर ने पे किया था, और प्लस इतना में खरीदा था 30 भाई 10% डिस्काउंट जब लिया था 40,000 में तो 36,000 पड़ा था, और 36,000 पे इनपुट टैक्स इसको देना पड़ा था 6,480। तो टोटल मिला करके उसको 42,480 में उसको जो है खरीदा, मतलब जो भी आइटम परचेज किया था 42,480 में खरीदा, ठीक है, जिसमें टैक्स है 6,480 का। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है, नेक्स्ट पार्ट में कि द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय रिटेलर फॉर द आर्टिकल। तो ये जो रिटेलर फाइनली है, रिटेलर कितने में खरीदा? तो रिटेलर के लिए पहले उसकी सेल परचेजिंग प्राइस जो भी आएगा, परचेजिंग प्राइस और प्लस टैक्स। तो देखो परचेजिंग प्राइस जब इसने होलसेलर ने रिटेलर को बेचा था तो 5% इंक्रीज करके बेचा था। तो 40,000 पे जब 5% आपने इंक्रीज किया था तो कितना एमआरपी आ गया? 42,000। और 42,000 जो इसकी सेलिंग प्राइस था, मतलब रिटेलर ने 42,000 में तो खरीदा ही, और जब खरीदा तो उसने टैक्स भी दिया। टैक्स कितना दिया? 7,560। तो सेकेंड पार्ट में आपको मिल जाएगा 42,000 और प्लस 7,560, and this is the total amount, that is 49,560। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? पहले पहला स्टेप समझो, पहले जितने भी पर्सन्स इन्वॉल्व होंगे बिजनेस में उन सबके लिए अलग अलग सेलिंग प्राइस निकालेंगे और फिर सेलिंग प्राइस पे सबके GST फाइन कर लेंगे। ठीक है, बस इतना काम करना है बेटा। हर स्टेप की सेलिंग प्राइस के बाद सेलिंग प्राइस पर GST। इसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो भी आप पूछता है वो उसका आंसर दे देते हैं। थर्ड पार्ट में देखो, दो पार्ट नोट कर लो आप, दो पार्ट नोट कर, थर्ड पार्ट आपको बताते हैं। थर्ड पार्ट रब कर दे। ओके, थर्ड पार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा,
द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो बेटा, अब आपसे कह रहा है कि इस होलसेलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया। एक कंसेप्ट आपको बताना भूल गया था, वो भी आज बता दे रहे हैं। देखो बेटा, जैसे मैन्युफैक्चरर है, समझो पहले मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर कब माइनस करते हैं, कब सीधा बता देते हैं टैक्स, तो इस चीज को समझो। जैसे मैन्युफैक्चरर है और ये होलसेलर है, अगर आपसे ये कहता है कि मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर से कितना टैक्स लिया, यानी हाउ मच टैक्स इज कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर फ्रॉम होलसेलर। समझो पहले बेटा, अभी कोई जवाब मत दो, क्योंकि क्वेश्चन समझो हम क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर आपसे बोलता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ टैक्स इज कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर फ्रॉम होलसेलर, तो इन मैन्युफैक्चरर और ये होलसेलर है, ये देखो पहला टैक्स है, और पहला टैक्स क्या है, इनपुट आईजीएसटी है। तो इनपुट आपके सामने है 6480, ठीक है, 6480 का इनपुट टैक्स है जो होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को दिया। अब इसमें होता क्या है, एक आप इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट उसके टैक्स को वापस करती है। बात समझ में आ रहा है? तो उसका जैसे मान लो यहाँ पे गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट है, अब देखो ये टैक्स इसको गया और यहां से इसको जाएगा, फिर इसको ये रिटर्न करेगी। भाई होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को दिया, मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को पास किया, और गवर्नमेंट ने फिर जो है पास कर दिया होलसेलर को। तो कैसे, जैसे मान लो दूसरा, अब ये कितना कलेक्ट किया था रिटेलर से, इसने कलेक्ट किया था 7, ये तो इनपुट हो गया, और आउटपुट की जब बात करें तो ये था 7560 था। तो 7560 इसने रिटेलर से लिया था, ठीक है, इसने रिटेलर से 7560 लिया। अब जो गवर्नमेंट इससे लेगी, अगर देखो गवर्नमेंट इसको कितना रिटर्न करेगी, कितना वापस करेगी, कितना लेगी, वो आपको बता रहे हैं। पहले तो 6480 ये टोटल मैन्युफैक्चरर को दे देगा। अब मैन्युफैक्चरर अपने अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को देगा, फिर गवर्नमेंट रिटर्न करेगी होलसेलर को। होलसेलर कितना, अब होलसेलर तो टोटल तो रिटर्न नहीं करेगी, कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर होलसेलर से एज टैक्स मिलेगी। कितना टैक्स लेगी, जो रिटेलर इसको टैक्स देगा। अब रिटेलर कितना दिया, इसको दिया 7560, तो 7000, अब इसने इसको दिया था कितना, इसको दिया था 6480, तो इसमें से इसको माइनस कर देगा, मतलब 7560 में से 6480 माइनस कर देगा। तो जब माइनस करेगा तो ये आपको मिल जाएगा 108। अब 1080 will be paid by the wholesaler to the central। क्लियर है? ये टैक्स, इसी को कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, है ना बेटा? इसी को कहते हैं इनपुट टैक्स, जिसको रिटर्न टैक्स बोलते हैं। रिटर्न टैक्स, जो टैक्स रिटर्न करके आ जाता है। दिया तो इसने पहले 6480, लेकिन जब उसको नीचे से कैलकुलेशन, जब इसको रिटेलर से टैक्स जैसे मिला, तो इसका टैक्स गवर्नमेंट ने वापस कर दिया, मतलब 6480 वापस कर दिया, और कहा कि जो एक्स्ट्रा है वो आप मुझे दे दो, अपना टैक्स ले लो। ये है इनपुट टैक्स रिटर्न। तो थर्ड पार्ट में आपसे यही क्वेश्चन किया हुआ है कि हाउ मच टैक्स इज पेड बाय द होलसेलर। तो थर्ड पार्ट में आपका आंसर मिलेगा 7560 माइनस 6480 इज इक्वल टू 1080।
ये पार्ट आपको आंसर दे देगा माइनस करने के बाद, आउटपुट माइनस इनपुट। फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सुनो एक और कहानी। अभी तो हमने कहा था आपसे कि रिसीव्ड मतलब कि गवर्नमेंट जो है टैक्स रिटर्न कर देती है, उसको भी समझो। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर है, होलसेलर, और इसके बाद से रिटेलर, रिटेलर। स्टेप समझना, कब क्यों माइनस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, कहां प्लस करते हैं, वो स्टेप आपको समझा रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर लिखने दो। मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर, ये तीन पर्सन इन्वॉल्व इन द बिजनेस। अब समझो, पहले देख टैक्स का कलेक्शन कैसे होता है। रिटेलर दिया होलसेलर को, होलसेलर दिया मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर दे दिया गवर्नमेंट को। बात समझ में आ रहा है? देखो, रिटेलर ने होलसेलर को, होलसेलर ने दिया मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर ने दिया गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने हिसाब से रिटर्न करेगी। तो रिटर्न किसको करेगी, पहले देखो जो पहला टैक्स है वो रिटर्न नहीं करती है। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो जो पहला टैक्स मींस द इनपुट टैक्स वो रिटर्न नहीं करेगी, वो अपने पास रख लेगी। तो इनपुट टैक्स क्या है, जो सबसे पहले टैक्स जो इनपुट टैक्स दिया था 6480, ये 6480 का तो ये अपने पास गवर्नमेंट जो है रखेगी ही रखेगी। और बाकी टैक्स जो उसको जिसको टैक्स एडजस्टमेंट के बाद जो टैक्स बचेगा वो अपने पास रखेगी। कैसे कि आउटपुट यहां से गया 7560 और यहां से इनपुट गया 6400, ये पहला टैक्स हो गया। बाकी जो होलसेलर ने दिया आउटपुट माइनस इनपुट, ये अपने पास रख लेगी गवर्नमेंट 1080, ये टोटल टैक्स होगा। ठीक है, यही वो टैक्स होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिसीव होगा, क्योंकि टैक्स इनपुट और प्लस आउटपुट माइनस इनपुट रिसीव होता है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो रिसीव्ड में इनपुट और प्लस आउटपुट माइनस इनपुट, इनपुट ये हो जाएगा। तो इनपुट आपका 6480 है और प्लस 7560 माइनस 6400। तो हाउ मच इज दिस वन, this one is 7560, 7560। this is the amount which will be will be received by the central government, amount of tax। I hope the question is clear everyone, question 9 is clear। IGST का बेटा दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। और इसके दो लास्ट के क्वेश्चन है वो डिफरेंट कंसेप्ट पे है, वो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हैव यू नोटेड दिस वन, written everyone? Okay. So come to see the question number 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर में 10 में बेटा ध्यान रखना, इसमें एक स्टेप ऐसा है जो अलग है, उस स्टेप को आप मतलब माइंड मेकअप करके चलना कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसको ऐसे ही करेंगे, क्योंकि सब क्वेश्चन से ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज में
उससे हटके क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसको देख लेना, नहीं तो आपका एक स्टेप रॉन्ग हो सकता है, उस स्टेप को बारीकी से समझ लेना, ठीक है। कह रहा है शॉपकीपर इन दिल्ली बाय एन आर्टिकल एट द प्रिंटेड प्राइस 24,000 फ्रॉम अ होलसेलर इन मुंबई। तो होलसेलर है, पहला तो होलसेलर है, होलसेलर एंड होलसेलर के बाद शॉपकीपर है, शॉपकीपर है, और शॉपकीपर सेल दैट आइटम टू कंज्यूमर, कंज्यूमर। हियर इज आल्सो टू स्टेप सेलिंग, होलसेलर ने शॉपकीपर को सेल किया और शॉपकीपर ने कंज्यूमर को सेल किया। तो आपको यहाँ SP1 फाइंड करना है और यहाँ पे SP2 फाइंड करना है और इसका टैक्स निकालना है। इतना तो काम करना ही करना है आपको, ठीक है। उसके बाद से जो क्वेश्चन का स्टेप होगा वो क्वेश्चन का स्टेप सॉल्व करेंगे। तो कह रहे हैं शॉपकीपर इन दिल्ली, ये भी होलसेलर बिलोंग्स टू, ये होलसेलर बिलोंग्स टू दिल्ली, ये दिल्ली से बिलोंग कर रहा है, और कंज्यूमर आल्सो बिलोंग्स टू दिल्ली, ये दोनों दिल्ली से है, और होलसेलर फ्रॉम मुंबई। अब इसमें इसमें थोड़ा सा कहा एक क्वेश्चन में इसलिए हमने आपसे बोला डिफरेंट है, क्योंकि बोथ, हाँ, इसमें दोनों क्वेश्चंस हैं, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों है, आप देख सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये मुंबई से है, ये दिल्ली से है, तो इन दोनों के बीच में इंटर स्टेट सेलिंग है, लेकिन जब दिल्ली टू दिल्ली है तो यहाँ पे इंट्रा स्टेट सेलिंग है। तो इधर का जो टैक्स इसमें कैलकुलेट करेंगे वो CGST और SGST में कैलकुलेट होगा, और यहाँ जो कैलकुलेट करेंगे वो सीधा IGST लगेगा, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। अब क्वेश्चन पार्ट पे चलते हैं। MRP is given 24,000, MRP 24,000 from wholesaler. Shopkeepers sell the article to a consumer Delhi at profit 15%, 15% profit, at 15% profit. Question ऐसे लिख देवे, and GST is 12%. GST is 12%. ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन समझो। First of all, you can see here कि wholesaler sell the item to the shopkeeper for 24,000, सीधा सीधा सेल किया 24,000, जो MRP है, MRP है ना, हाँ MRP है, फ्रॉम ए होलसेलर इन मुंबई, उसी पे सेल कर दिया हुआ है। तो जब 24,000 पे सेल किया है शॉपकीपर को, तो शॉपकीपर विल पे टैक्स एज ए IGST, और सेलिंग प्राइस फर्स्ट केस में कितना आ जाएगा 24,000, ठीक है। क्योंकि यहाँ यहाँ ऐसा कुछ तो कहा नहीं है, उसने सीधे कह दिया है कि होलसेलर ने शॉपकीपर को 24,000 में सेल कर दिया, तो सेलिंग प्राइस 24,000 हो गया। लेकिन अगर से शॉपकीपर ने परचेस किया है तो टैक्स तो देगा, तो IGST लगेगा, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट स्टेट के हैं। तो IGST इज हाउ मच परसेंट, बोलो बेटा, IGST हाउ मच परसेंट, IGST हाउ मच परसेंट, 12%. So 12% means 24,000 into 12 divided by, I think time is over. Okay. So we'll discuss later students, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इसलिए टाइम ही हम आपको खींच रहे थे ताकि क्वेश्चन आपसे क्लियर हो जाए, ठीक है। और यही लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद से GST आपका फिनिश है, तो आई थिंक इज टुडे, so tomorrow GST will finish. Okay, student, we'll discuss later in the next session. Thank you, student.